Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining the chapter preparation of subsidiary books for intermediate first year students for Telangana State Board of Intermediate Education. Chapter 4, page number 115, question number 14. Prepare purchases book. The transactions are given for the year 2019 and here you are also required to prepare purchases book and also post them into ledger. You are required to prepare purchases book. You are required to prepare purchases book and also post them in ledger. तो आपको यहाँ पे purchases book भी बनाना है और साथ साथ ledger accounts भी बनाना है. So the transactions are given for the year 2019 for the month of March. What is the format for purchases book? The format for purchases book is date, particulars, inward, invoice number, LF, details, amount, rupees. The first transaction is given on 2019 March 1st. Goods purchased from Praveen 7,500. So how do we record this? This transaction will be posted as, first the date will be taken as 2019 March 1st. You have purchased goods from Praveen. So Praveen name will be recorded in particulars and you have purchased goods for rupees 7,500. So 7,500 will be recorded in amount column. Next, after March 1st, we have a transaction on March 4, purchased goods from Jagan for rupees 6,000. So this will be recorded as, first the date will be taken as March 4. You have purchased goods from Jagan. So the name of Jagan will be recorded in particulars and the amount 6,000 will be recorded in amount column. Next, after March 4, we have a transaction on March 8, purchased goods from Raju 4,000. So here are the transactions. You will be posting it as March 8. You have purchased goods from Raju. So Raju name will be recorded in particulars Raju and you have purchased goods for rupees 4,000. So 4,000 will be recorded in amount column. Next, after March 8, we have a transaction on March 12, goods purchased from Ravi for 5,500. So we will be writing this as, the date will be taken as March 12. As you have purchased goods from Ravi, Ravi name will be recorded in particulars and you have purchased goods for rupees 5,500. So 5,500 will be recorded in amount column. Next, after March 12, we have a transaction on March 16, purchased furniture from Ashish. So this is a transaction related to purchase of asset, hence it is not recorded in purchases book. So we will be writing a note for it that transaction dated on March 16 is a transaction related to purchase of furniture, that is purchase of asset, that is furniture, hence it is not recorded in purchases book. Next, after March 16, we have a transaction on March 20, goods purchased from Shravan. So this will be recorded here as, the date will be taken as March 20. As you are purchasing goods from Shravan, Shravan name will be recorded here 7,000 rupees. So here you will be writing the amount as 7,000. So after completing all the transactions, we will be just doing the total for this. Here the total is 6,000 plus 4,000, 10,000, 10,000 plus 5,000, 15,000, 15,000 plus 7,000, 22,000, 22,000 plus 7,000, 29,000, 29,000 plus 500, 29,500 plus 500, 30,000. So here the total is 30,000. So the total of sales book is, so total of purchases book is 30,000. So here you will be writing it as total. The total will be taken as 30,000. So we have not recorded one transaction, that will be recorded as a note, that the transaction dated, what was the transaction that we have ignored? It was the transaction on March 16. March 16, the transaction on March 16 is related to purchase of furniture. So we will be writing a note as transaction dated on March 16 is related to purchase of asset. क्या खरीदे थे आप? फर्नीचर खरीदे थे. So it was a transaction related to purchase of asset furniture and hence it is not recorded in purchases book.
So transaction dated on March 16 is related to purchase of a set furniture and hence it is not recorded in purchases book. Now we have completed preparing purchases book. So after that we are also required to post them into ledger. तो अभी हम क्या करेंगे, purchases book बना दिए, अब क्या करेंगे, इसके ledger accounts बनाएंगे. तो अब इसके ledger accounts कैसे बनाएंगे? What is the format for ledger? Date, particulars, general folio, amount, rupees. So here are the format for general ledger. तो यहाँ पे ledger accounts सबके ledger accounts बनाएंगे आप. The first ledger account will be prepared for purchases account. Then the format is date, particulars, JF, general folio, amount rupees, date, particulars, JF, general folio, amount rupees, and the name of the account is purchases account. Towards extreme left you will be writing DR debit and towards extreme right you will be writing CR credit. तब यहाँ पे जो परचेजेस अकाउंट बनाएंगे आप, इसमें क्या करेंगे, ये जो परचेजेस बुक का टोटल है ये लिखेंगे. सो द टोटल ऑफ परचेजेस बुक इज 30,000. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कौन से मंथ के ट्रांजैक्शंस थे, मार्च के ट्रांजैक्शंस थे. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, परचेजेस इट इज एन एक्सपेंडिचर एंड ऑल एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस. तो अब आप इसको क्या करेंगे, वो मंथ की लास्ट डेट लिखेंगे 2019 मार्च 31. तब यहाँ पे आपको टोटल कितना पैसा पे करना है, कितने लोगों से खरीदे आप, वो सबका अमाउंट यहाँ पे लिखना है. तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक. तो परचेजेस बुक के हिसाब से आपको टोटल कितने पैसे पे करना है, 30,000 पे करना है. किस किस को पे करना है, टू प्रवीण वी हैव टू पे 7,500, टू जगन वी हैव टू पे 6,000, टू राजू वी हैव टू पे 4,000, टू रवि वी हैव टू पे 5,500 and to Shravan we have to pay 7,000. So total as per this purchases book is 30,000. So we'll be writing that as two sundries as per purchases book. 30,000 will be recorded in purchases account. Next, after purchases account we'll be preparing the ledger accounts of all the persons who have been named in purchases book. जिन जिन लोगों का नाम आप purchases book में लिखे उन सब का लेडजर अकाउंट बनाएंगे आप. प्रवीण के लिए एक सेपरेट लेडजर अकाउंट बनाएंगे, जगन के लिए एक सेपरेट लेडजर अकाउंट बनाएंगे, राजू के लिए एक सेपरेट लेडजर अकाउंट बनाएंगे, रवि के लिए एक सेपरेट लेडजर अकाउंट बनाएंगे, श्रवण के लिए आप एक सेपरेट लेडजर अकाउंट बनाएंगे. सो द फॉर्मेट फॉर लेडजर अकाउंट इज सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीज. टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी राइटिंग DR डेबिट एंड टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट विल बी राइटिंग CR क्रेडिट. तो पहले हम किससे खरीदे थे, प्रवीण से खरीदे थे. कौन से दिन खरीदे थे, 2019 मार्च 1. तो परचेजेस बुक में हम प्रवीण का नाम लिखे, प्रवीण के अकाउंट में परचेजेस का नाम लिखेंगे. तो जब आप सामान खरीद रहे तो जनरल एंट्री क्या आती, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट आती. जब आप प्रवीण से सामान खरीद रहे द जनरल एंट्री विल बी हियर यू विल बी राइटिंग द जनरल एंट्री एज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, द जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज परचेजेस अकाउंट डेबिट. किससे खरीद रहे आप, प्रवीण से खरीद रहे. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट. तो अब आप किसका अकाउंट बना रहे, प्रवीण का अकाउंट बना रहे. रूल्स क्या है, प्रवीण के अकाउंट में खुद प्रवीण का नाम नहीं लिख सकते. किसका नाम लिखेंगे आप, परचेजेस का नाम लिखेंगे. परचेजेस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री. सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेडजर इट विल बी पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द लेडजर अकाउंट. तो अब ये कौन सी डेट पे हो रहा है ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन ऑन मार्च 1. तो आप यहाँ पे डेट क्या लेंगे, फर्स्ट द डेट विल बी टेकन एज 2019 मार्च 1. तो आप क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे, तो उसको कैसा लिखते हैं, बाई परचेजेस. कितने का सामान खरीदे थे आप प्रवीण से, वी हैव परचेज फॉर रुपीज 7,500. सो द अमाउंट विल बी रिटन हियर एज 7,500. तो अब यहाँ पे प्रवीण का लेडजर अकाउंट हो गया. नेक्स्ट, आफ्टर प्रवीण अकाउंट वी हैव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जगन. ऑन March 4 वी हैव परचेज गुड्स फॉर रुपीज 6,000 फ्रॉम जगन. तो अब एक सेपरेट लेडजर अकाउंट बनाएंगे आप, जगन का अकाउंट बनाएंगे एंड द फॉर्मेट विल बी दी सेम. तब यहाँ पे जो फॉर्मेट आ रहा देखिए, जगन का जो फॉर्मेट आ रहा, आफ्टर प्रवीण वी आर प्रिपेयरिंग ए लेडजर अकाउंट फॉर जगन. तब यहाँ पे जो फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीज एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज जगन अकाउंट. टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी राइटिंग DR डेबिट एंड टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट विल बी राइटिंग CR क्रेडिट. ये जो ट्रांजैक्शन था ये मार्च 1 का था, तो यहाँ पे डेट भी ले लेंगे सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन. फिर हम जगन से जो खरीद रहे वो मार्च 4 के दिन खरीद रहे, तब जनरल एंट्री क्या आती, मार्च 4. अगेन वी आर परचेजिंग गुड्स, सो द जनरल एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट. इस बार किससे खरीद रहे, हम जगन से खरीद रहे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जगन अकाउंट. सो हाउ डू वी पोस्ट दिस इन जगन अकाउंट, जगन के अकाउंट में खुद जगन का नाम नहीं लिख सकते आप. किसका नाम लिखेंगे, परचेजेस का नाम लिखेंगे. कौन से दिन हो रहा वो ट्रांजैक्शन, इट इज बीइंग डन ऑन
March 4, so the date will be taken as 2019 March 4. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस। जैसा परचेजेस बुक में जगन का नाम लिखे वैसा जगन के अकाउंट में हम परचेजेस का नाम लिख रहे, बाई परचेजेस। अब ये बंदे से हम कितने का सामान खरीदे, 6000 रुपीज़। जगन से कितने का सामान खरीदे थे, 6000 का सामान खरीदे थे। सो द अमाउंट विल बी रिटर्न हियर एज 6000 रुपीज़। Next, after Jagan account, we have purchased goods from Raju on March 8 for rupees 4000. So now we'll be preparing a separate ledger account for Raju, and the journal entry on March 8 will be purchases account debit to Raju account 4000. तो पहले इसकी राजू का एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने से पहले जनरल एंट्री की स्पेस देखिए। तो दिस ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन ऑन March 8। तब आप क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे, तब जनरल एंट्री क्या आती, परचेजेस अकाउंट डेबिट। किससे खरीद रहे हैं आप, राजू से खरीद रहे हैं। सो इट विल बी पोस्टेड एज, इट विल बी रिटर्न एज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। तो अब इसके रूल्स क्या है, कितने का सामान खरीद रहे हैं आप, 4000 का सामान खरीद रहे हैं। सो आई एम नॉट राइटिंग द अमाउंट इन जनरल एंट्रीज। तो राजू से कितने का सामान खरीदे, 4000 का सामान खरीदे। जैसे कि प्रवीण से जो सामान खरीदे थे वो 7500 का था, तो अब यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं 7500 7500 ये प्रवीण का अमाउंट था। नेक्स्ट, जब आप जगन से खरीदे वो 4000 का सामान खरीदे थे, तब यहाँ पे 6000 का सामान खरीदे थे। तब ये एंट्री में अमाउंट क्या लिखेंगे आप, 6000 ऑन डेबिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री, 6000 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री। नेक्स्ट, आफ्टर March 4 वी परचेज्ड गुड फ्रॉम राजू। राजू से जो सामान खरीदे March 8 के दिन, वो कितने का खरीदे, 4000 का खरीदे। तो आप ये जनरल एंट्री में जब लिख रहे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट, यहीं पे आप अमाउंट भी लिख दीजिए 4000 ऑन डेबिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री एंड 4000 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री। तो अब हाउ डू वी पोस्ट दिस, इसकी पोस्टिंग के साथ ही राजू के अकाउंट में खुद राजू का नाम नहीं आएगा। किसका नाम लिखेंगे आप, परचेजेस का नाम लिखेंगे। ये ट्रांजैक्शन कब हो रहा, 2019 March 8. So as you are purchasing the goods, you will be writing it as by purchases account. कितने का सामान खरीद रहे आप, 4000 का सामान खरीद रहे। So you will be writing it as 4000 rupees. तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे 4000. So the amount will be written here as 4000. Next, after Raju account, after this transaction, we have purchased goods from Ravi. तो एक बार एक नज़र देखिए क्वेश्चन। हम जो सामान खरीद रहे राजू के बाद किसे खरीद रहे, आफ्टर March 8 वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन March 12। तो अब एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे आप, रवि के लिए बनाएंगे। 5500 का सामान खरीद रहे, तो अब रवि के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो रवि के लिए जो सेपरेट अकाउंट बना रहे हो, उससे पहले रवि का जो ट्रांजैक्शन था उसकी जनरल एंट्री लिख दीजिए। सो इट वाज ऑन March 12। तो आप सामान खरीद रहे, किसे खरीद रहे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का सामान खरीदे आप, 5500 का सामान खरीद रहे। किसे खरीद रहे, टू रवि, रवि से खरीद रहे। सो टू रवि अकाउंट 5500। अब व्हाट आर द रूल्स फॉर लेडजर अकाउंट्स, खुद रवि के अकाउंट में रवि का नाम नहीं लिख सकते, तो अब आप किसका नाम लिखेंगे, परचेजेस का नाम लिखेंगे। सो द ट्रांजैक्शन इज डन ऑन 2019 March 12, 2019 March 12। तो अब आप इसको कैसा लिखेंगे, बाई परचेजेस, बाई परचेजेस अकाउंट। कितने का सामान है वो, 5500 का। सो द अमाउंट विल बी रिटर्न हियर एज 5500। नेक्स्ट, आफ्टर परचेजिंग फ्रॉम रवि वी हैव डन ए ट्रांजैक्शन ऑन March 16। अब इसकी जो जनरल एंट्री आती, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम आशीष फॉर ₹2000, उसके लिए हम एक नोट लिखे थे, ट्रांजैक्शन डेटेड March 16 इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ असेट, हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। तो अब यहाँ पे इसकी जो जनरल एंट्री आएंगी, वो जनरल एंट्री क्या रहती, आप क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे। सो द जनरल एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट। तब ये जो जनरल एंट्री है, इसमें कहीं भी परचेजेस का नाम नहीं है, इस वास्ते हम जो है ना ये परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो आप जो फर्नीचर खरीद रहे थे वो कितने में खरीद रहे थे,
2000 रुपीज़ में. सो हियर द अमाउंट विल बी रिटर्न एज 2000. बट ये एंट्री की पोस्टिंग परचेजेस बुक में नहीं हुई, लिहाजा इसका भी आप सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएं, लेडजर अकाउंट नहीं बनाएं, बिकॉज परचेजेस बुक में जो सप्लायर्स के नाम लिखे सिर्फ उन्हीं के लेडजर अकाउंट्स बनाएंगे आप. नेक्स्ट, आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन वी हैव डन ए ट्रांजैक्शन ऑन March 20 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्रवण. तो इसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा श्रवण का. तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या आएंगी, March 20 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्रवण 7000. तो श्रवण अकाउंट बनाने से पहले उसके लिए जनरल एंट्री लिख दीजिए आप. तो March 20 आप सामान खरीद रहे, March 20 किसे खरीद रहे, यू हैव परचेज्ड गुड्स. तो जनरल एंट्री क्या आएंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, किसे खरीद रहे आप, श्रवण से खरीद रहे. सो द जनरल एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्रवण अकाउंट. कितने का सामान खरीद रहे आप, 7000. सो 7000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ दी जनरल एंट्री. 7000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज वेल एज 7000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. बट अब इसकी जो पोस्टिंग होंगी वो कैसा होंगी, खुद श्रवण के अकाउंट में श्रवण का नाम नहीं लिख सकते, तब आप किसका नाम लिखेंगे, परचेजेस का नाम लिखेंगे. सो 2019 March 20 it will be recorded as by purchases account. अब यहाँ पे कितने का सामान खरीद रहे हैं, 7000. so it will be recorded as 7000. तो अब तक के जितने भी प्रॉब्लम्स करे हम उसमें सिर्फ परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बुक बना रहे थे. बट इस बार अपने को क्या बोला, प्रिपेयर लेडजर अकाउंट्स एज वेल बोल के बोला. तो पहले परचेजेस बुक बना देने के बाद परचेजेस में जिन जिन सप्लायर्स के नाम लिखे आप, हर वो सप्लायर का अकाउंट बनेगा, साथ साथ परचेजेस का भी अकाउंट बनेगा. तो यहाँ पे जो टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक है, इसका क्या मतलब है, हम टोटल सप्लायर्स को 30,000 पे करना है, जिसमें से पहले सप्लायर प्रवीण है, जिससे हम 1 मार्च के दिन खरीदे थे 7,500 रुपये. तो वो प्रवीण का अकाउंट बना देंगे. इट मीन्स दैट वी ओ ₹7,500 टू प्रवीण, जिसकी जनरल एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रवीण. नेक्स्ट, प्रवीण के बाद हम जगन से खरीदे थे, जिसके लिए जनरल एंट्री क्या लिखे हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जगन. March 4 के दिन जगन से खरीदे. सो वी ओ ₹6,000 टू जगन, विच इज रिकॉर्डेड एज 2019 March 4 एज बाई परचेजेस अकाउंट 6,000. नेक्स्ट, जगन के बाद हम किससे खरीदे थे, राजू से खरीदे थे. उसके लिए जनरल एंट्री लिखे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट 4,000. तो ये अकाउंट से क्या मालूम हो रहा, वी ओ ₹4,000 टू राजू. नेक्स्ट, आफ्टर राजू वी प्रिपेयर्ड रवि अकाउंट. तो रवि के अकाउंट से अपने को क्या मालूम हो रहा, वी हैव परचेज गुड्स वर्थ ₹4,000 फ्रॉम ₹5,500. वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम वर्थ ₹5,500 फ्रॉम रवि. सो वी ओ 5,500 टू रवि. So after Ravi we prepared Shravan account and we have written it as 2019 March 20 by purchases account 7,000. It means that the business owes an amount of ₹7,000 to Shravan. So this is how we prepare ledger accounts along with subsidiary books. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.